हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि पावर बी आई इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड एम्फेटिक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. सो वी विल discuss one by one. So first question is that what are the views in Power BI? So in Power BI we can give the answer like that. In Power BI there are three main views that you can work in depending on what you are trying to achieve. So there is a three types of views present in a report view, data view or model view. In a report view, this is where you create and design your visualizations like charts, tables and graphs. You can drag and drop fields from your data into Canvas to build interactive reports. It's mostly commonly used mode for creating report dashboards and sharing insights. मतलब रिपोर्ट व्यू में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के विजुअल्स लेके हम विजुअलाइजेशन करते हैं. वहाँ पे मतलब राइट साइड में डिफरेंट टाइप्स के टेबल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो वहाँ से हम विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं और नंबर ऑफ पेजेस बना के रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. सो डाटा व्यू, this mode allows you to see the raw data in our data set. You can inspect, explore and clean your data directly in Power BI. It is useful for checking data quality or performing quick calculations on columns. मतलब डाटा व्यू, मतलब सेकंड नंबर का टैब जो रहता है वो डाटा व्यू का रहता है. वहाँ से हम मतलब कितने नंबर्स ऑफ टेबल्स प्रेजेंट है और टेबल्स में कितने कॉलम्स और रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है वो इजीली देख सकते हैं. टेबल्स सॉरी कॉलम्स के नेम भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप्स कर सकते हैं इजीली यूजिंग डाटा व्यू. So next is a model view. In this mode you can manage the relationships between the different tables in our data model. You can create, edit or delete relationships to ensure your data is connected correctly. It is essentially for building a well structured data model for accurate analysis. मतलब accurate analysis के लिए हम मतलब relationships build करने के लिए हम model view use करते हैं. In model view there is a one fact tables and there is a number of dimension tables present. We will connect with one to many. One means fact table and many means that is dimension tables. From the manage roles, from the manage relationships, we can build these relationships. So these modes help you work with data in different ways, from exploring raw data to creating visualizations and managing relationships. So मतलब हम ऐसी तरह के आंसर दे सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between import mode, direct query mode and live connections in Power BI. First is import mode. In this mode data is imported and stored in Power BI desktop. Suppose we choose firstly that is a SQL server data source. When we collect this, मतलब वहाँ से हमें इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड टू ऑप्शंस दिखते हैं. जब हम इंपोर्ट मोड पे क्लिक करते हैं तब डाटा पावर बाई डेस्कटॉप में ऑटोमेटिकली स्टोर्ड होता है. डाटा वी कैन इजीली शो इन डाटा व्यू. मतलब हम कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स है रोज प्रेजेंट है हम डाटा व्यू में जाके इजीली देख सकते हैं. इट इज़ फास्ट फॉर एनालिसिस एंड allows you to use all the Power BI features like calculated columns, measures and advanced visualizations. Best for small to medium size data set because the data is loaded into memory. मतलब import mode जब ये यूज़ करते हैं तब memory का जो कंज्यूम होता है वो बहुत कम होता है और इट इज़ फास्ट एनालिसिस. और हमें उधर डिफरेंट टाइप्स के डैक्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मेजर्स, कैलकुलेट कॉलम्स और एडवांस विजुअलाइजेशंस हम इजीली यूज़ कर सकते हैं इन इंपोर्ट मोड. और जब हम इंपोर्ट मोड यूज़ करते हैं जो विजुअलाइजेशंस लोड होने में चांसेस बहुत कम रहते हैं इजीली. जब हम पावर बाई पीपीएक्स फाइल किसी को शेयर करते हैं तो उनको नई दिक्कत नहीं होती कि जब इजीली उनको विजुअल्स दिख जाते हैं. सो डायरेक्ट क्वेरी मोड. In this mode, Power BI does not store the data. Instead, it queries the data directly from the source like SQL database in real time. मतलब जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट क्वेरी मोड में हम डाटा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो नहीं करते हैं. वो ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर में डाटा स्टोर होता है. सो हम डाटा व्यू मतलब इजीली देख नहीं सकते इन डायरेक्ट क्वेरी मोड. It is used for large data set that cannot fit into memory or you when you needed real time data updates. जब हम रियल टाइम डाटा से ही काम करते हैं बिकॉज डाटा है ना लाइव फॉर्मेट में रहता है हियर और हम लार्ज डाटा सेट्स के लिए यूज़ करते हैं. सम पावर BI फीचर्स लाइक कैलकुलेटेड कॉलम्स आर लिमिटेड बिकॉज द डाटा स्टेज इन द
सोर्स सिस्टम, मतलब हम लिमिटेड टाइप्स के डाटा डैक्स यूज़ कर सकते हैं। मेजरली हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हियर यूज़ नहीं करते। Next, live connection. This mode is used when you connecting to advanced data sources like analysis services or Power BI data sets. Power BI does not import or query the data directly. Instead, it connects to a pre-built data model in the source. It is ideally for enterprise scenarios when where the data model is already designed and maintained in tools like SSAS. मतलब हम जस्ट ऑलरेडी वहाँ पे डाटा मॉडलिंग वगैरह सब क्रिएट होता है, जस्ट हमें विजुअलाइजेशंस के लिए हम लाइव कनेक्शन का यूज़ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, what is DAX in Power BI? So DAX stands for Data Analysis Expression. It is a formula language or it is an advanced version of Excel. Use uh, we use similar like Excel, Power Pivot, that type of calculations we use here. Also, we use same formulas to create custom calculations and analysis data. So DAX helps you perform calculations on our data, such as summing up the values, finding averages, or creating more complex measures like year over year growth. It is similar to Excel formulas, but is designed to work with relational data and is more powerful for handling large data sets. मतलब जैसे कि हमें एडवांस लेवल की कैलकुलेशन करना है तो हम इजीली पावर बीआई में कर सकते हैं। और हम यहाँ पे मेजर्स कैलकुलेटर कॉलम यूज़ करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे कि एग्रीगेटेड फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस, सो डेट फंक्शंस, सो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यूज़ करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए यूजिंग दैट पर्टिकुलर टेबल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ डेक्स, जैसे कि कैलकुलेटेड टोटल सेल्स, तो हम टोटल सेल्स मेजर्स और कैलकुलेटर कॉलम बना के हम वहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इजीली। हमें एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज का भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्रिएट अ मेजर फॉर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ। सो DAX is essential in Power BI because it allows you to create meaningful insights and matrices from your data, making your reports and dashboards more dynamic and useful. जब हम DAX यूज़ करते हैं ना तो हमें इजीली मतलब मोर एंड मोर इंसाइट्सफुल रिजल्ट फाइंड हम कर सकते हैं using that DAX functions. Moving to the next question, what is RLS in that is row level security in Power BI? So first is definition. RLS restricts the data at row level, allowing users to see only the data relevant to their रोल स्पेसिफिक रीजन। सपोज मेरे पास 4 रीजन्स प्रेजेंट है और इन 4 रीजन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स अवेलेबल है, तब हम मतलब हाइड कर सकते हैं। सपोज मेरे को जस्ट वेस्ट पर्सन के पीपल्स को वेस्ट रीजन का ही डाटा दिखाना है तो हम उनको वही डाटा दिखाएंगे और अदर 3 रीजन्स जो रहते हैं वो हाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएलएस, स्टैटिक आरएलएस और डायनेमिक आरएलएस। Static RLS roles are predefined and fixed. Dynamic RLS security is managed using a mapping table, usernames, emails, and that user principal name tags. हम स्टैटिक RLS कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स वेरी लेस है, जैसे कि 10, 20 लाइक दैट, एंड उनको ही मेरे को एक्सेस देना है तो हम इजीली उनका ईमेल आईडी पास करके हम उनको मैन्युअली एक्सेस दे सकते हैं। बट डायनेमिक RLS में सपोज मेरे पास मेरे को एक कंपनी को पीपल्स को एक्सेस देना है और उनके पास 1000 2000 एम्प्लॉयज़ है, तो उनको मैन्युअली ईमेल आईडी पुट करना बहुत पॉसिबल नहीं, तब हम डायनेमिक RLS यूज़ करते हैं। यहाँ पे की फंक्शंस में देखते हैं, यूजर प्रिंसिपल नेम रिटर्न्स द लॉग्ड इन यूजर्स ईमेल और यूजर नेम इन बोथ पावर बाय डेस्कटॉप एंड सर्विस। हम पावर यूजर प्रिंसिपल नेम यूज़ करते हैं जब हम डायनेमिक RLS करते हैं। यूज़र नेम रिटर्न्स द डेस्कटॉप मशीन नेम फॉर डेस्कटॉप ओनली, जस्ट डेस्कटॉप के लिए हमें फाइंड करना है तब हम यूज़र नेम ही करते हैं। बट जब हम रिपोर्ट्स बनाते हैं तब हम मेजरली यूज़र प्रिंसिपल नेम का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट RLS, फर्स्ट इज इम्पोर्ट द डाटा सेट, मतलब पहले हम डाटा सेट इम्पोर्ट करते हैं पावर बाय डेस्कटॉप में। आफ्टर दैट गो टू द मॉडलिंग टैब और रिबन, वहाँ पे मैनेज रोल्स का ऑप्शन रहता है। क्लिक ऑन टू देर इज अ क्लिक क्रिएट एंड प्रोवाइड अ रोल नेम, वहाँ से हम रोल क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेबल एंड डिफाइन अ DAX फिल्टर्स एक्सप्रेशन, वैलिडेट द एक्सप्रेशन यूजिंग द चेक मार्क, पब्लिश
टू पावर बी आई सर्विस एंड टेस्ट द रोल्स. मतलब वहाँ पे सेव करके हम इजीली पब्लिश करते हैं पावर बी आई सर्विस में. और पावर बी आई डेस्कटॉप में टेक्स्ट रोल्स बोल के ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम मतलब वो जो आर एल एस वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different types of filters available in Power BI? So in the Power BI, filters are used to narrow down data and focuses on specific informations in your reports. There are four types of filters available. पहला बोलेंगे कि विजुअल लेवल फिल्टर, filters one visual only. Page level filter filters all the visuals on one page. Report level filters are visuals in the entire report and drill through filters to show detailed data for a specific item. These filters help you control and analyze data more effectively in Power BI. We can able to show into the filter pane of that all types of visuals. Moving to the next question, types of data refreshes in Power BI. So there is three types of data refreshes in Power BI. First is a manual refresh, second is a scheduled refresh, and third is incremental refresh. First, manual refresh. A manual refresh triggers the updates to pull the latest data in our Power BI report. Example, imagine you have a sales reports in Power BI, and every Monday the sales team updates their data in an Excel sheet. To reflect these new numbers in our Power BI report, you open the report and click the refresh in the home tab. When we click onto that refresh button, this brings in the updated data from the Excel file immediately. Within a मतलब कुछ क्विक सेकंड में ही डाटा इजीली अपडेट होता है जब हम रिफ्रेश करते हैं मैन्युअली. शेड्यूल्ड रिफ्रेश, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू पावर बी आई सर्विस. पावर बी आई ऑटोमेटिकली रिफ्रेश द यूर डाटा एट सेट टाइम्स लाइकली डेली और वीकली. मतलब यहाँ पे भी हमें टू टाइप्स के अकाउंट दिखते हैं, पावर प्रो अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट. प्रो अकाउंट में हम डेली बेसिस में 8 टाइम्स शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं, और प्रीमियम अकाउंट में हम 48 टाइम्स डे में शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हैं. एग्जाम्पल, यू हैव क्रिएटेड अ डैशबोर्ड that tracks the website traffic and connected to its Google Analytics. Since the data is updated every day, you set up a scheduled refresh in Power BI service to refresh the report daily at 9 a.m. Now every morning the Power BI fetches the latest traffic data and updates your dashboard without you needing to do anything. Means automatically data refresh happens. Firstly we set the scheduled refresh timing. Next is incremental refresh. Power BI only refreshes new or changed data instead of reloading the entire data set. मतलब हमारे पास बहुत सारा लार्ज डाटा सेट है, वो हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम होता है, तब हम इंक्रीमेंटल रिफ्रेश करते हैं. लेट्स से यू हैव अ डाटा बेस विथ 5 years of sales data. Then instead of refreshing all 5 years of data every day, which would take a long time, you configure an incremental refresh to only refresh the last 30 days of data. This speeds up the refresh process since only recent changes are updated while the older data remains same. हमें incremental refresh जब हम start date and end date पावर बी आई डेस्कटॉप में हम इजीली वहाँ से हम कर सकते हैं कि कब से कब तक का डाटा हमें चाहिए. मतलब मेरे पास 5 years का डाटा है, तो हम लेटेस्ट 2 years का डाटा है हमें शो करना है, तो हम रिफ्रेश करना है, तो हम मैन्युअली लाइक इंक्रीमेंटल रिफ्रेश से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने 6th क्वेश्चन देखे. मतलब हम हमारा जो रहेगा फर्स्ट पार्ट रहेगा. हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ एम्फेटिक से क्वेश्चंस देखते हैं और वो डिस्कस करेंगे. मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए अबाउट पावर बी आई एंड एसक्यूएल. वो आप मतलब देखिए वीडियोस और आपके फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए. थैंक यू.